Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 8 maths, and our chapter is factorization. So, student, in this chapter, yesterday we learned how to factors any algebraic expression. Okay, so when we want to factorize any algebraic expression, so we have first method is a taking common. Okay, method of common factors. Okay, when if we are seeing there is any common factor in between two terms, so we can common them and then we have to factorize that number. Okay, and then second method is factorization by regrouping. रीग्रुप मीन्स आपको सेम वेरिएबल्स के कोई दो टर्म्स दिख रही हैं तो आप उसे रीग्रुप करिए, मीन्स उसे पास लिखिए, ग्रुप बनाइए उसका, और फिर उसमें से कॉमन निकाल करके आप उसे सॉल्व करिए. ओके, अंडरस्टैंड. सो 14.1, आई होप यू आर ऑल आर completed exercise 14.1 in your notebook. Now factorization by using identities. Okay, so these are very important because in this topic we learn how to factorize using identity. Okay, how to factorize any algebraic expression using identity. So we learned yesterday, we learned total 4 or 5 identities. Okay, 4 identities we learned. Let's revise it. So in this case, first identity is our if एनी टर्म हैविंग स्क्वायर, मीन्स अगर हम देखते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसको बोल सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसे फर्स्ट आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. और फर्स्ट आइडेंटिटी एंड सेकेंड आइडेंटिटी, कन्वर्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिटी. ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, let's see our first and second identity. See here, so what is a plus b whole square? A plus b, if any number having any algebraic expression having in the form of a plus b whole square, so you have to factorize them, a square plus 2ab plus b square. Okay, or if you can see any number is in the form of a square plus 2ab plus b square, so you can factorize with the help of these. अगर कोई नंबर इस टाइप से आपको दिख रहा है कि अगर वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, सो हम उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, सेम हियर, अगर कोई नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हम उसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं. और इसका कन्वर्स मीन्स अगर कोई नंबर, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर फॉर्म में है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट a माइनस बी होल स्क्वायर. ओके, और थर्ड आइडेंटिटी इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अगर इस टाइप से कोई टर्म है तो हम उसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और इफ एनी टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट ए प्लस बी ए माइनस बी. Okay, this is our third identity. Okay, understand. Now what about our fourth identity? X plus a into x plus b. If any number is in the form of x plus a into x plus b, so we can write it x square plus a plus b into x plus ab. Okay, so some students are having doubt in question number first. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज. हमें फैक्टराइज करना है फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को, डेट इज ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. ओके, सो आवर क्वेश्चन इज, थोड़ी प्लेस ले लेती हूँ मैं. और क्वेश्चन इज ए स्क्वायर, जस्ट मिनट, yes, your question is a square plus 8a plus 16. So first you can see
first term, what is our first term? This is our first term, this is our last term. So first term क्या whole square है? Yes, you can say that yes, for a is a square of a. Okay, so first term is a perfect square. Now क्या 16 हमारा होल स्क्वायर है? तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर. ओके, सो यू कैन से दैट यस इट्स ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, नाउ क्या ये जो नंबर है मिडिल में हमें दिख रहा है ये 2ab के फॉर्म में है? आपको पहले ये देखना है. 2 इंटू फर्स्ट टर्म है हमारा a, सेकेंड टर्म में हमारा लास्ट टर्म है हमारा 4. सो क्या हम अगर ऐसा लिखते हैं तो ये 8 बनता है, 8a बनता है. यस, इट बिकम 8a. 4 2 is 8 and a. Okay, so here you can write a is equal to a and b is equal to 4. So आपको पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो अगर नंबर इस फॉर्म में है तो हम उसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर. यहाँ पर a तो हमारा a है प्लस b क्या है 4. सो आवर आंसर इज a प्लस 4 होल स्क्वायर. ओके, अंडरस्टैंड. सेम हियर हम सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट नाउ अदिति एंड एनी वन स्टूडेंट इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी ऑन व्हाट्सएप. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25. यहाँ पर भी हम वही मेथड लेंगे. p स्क्वायर को हम p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 25 को हम 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. नाउ यहाँ पर हमें देखना है 2p इंटू 5 दिख रहा है. सो ये हमारा 2ab के फॉर्म में है. वी नो दैट a माइनस बी, यहाँ माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. Here a is equal to p and b is equal to 5. Okay, putting the value a अगर इस फॉर्म में है हमारा नंबर, यस हमें दिख रहा है इसी फॉर्म में है वो नंबर. सो हम उसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर. a क्या है हमारा p, b इज़ 5, p माइनस 5 का होल स्क्वायर इज़ माई आंसर. It is the factorization of the number p square minus 10p plus 25. Okay. Now let's see the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9. सो आपको सबसे पहले देखना है फर्स्ट टर्म. ओके, यू कैन सी फर्स्ट टर्म इज 25. 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू m स्क्वायर जो आपको दिया हुआ है. 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. अब आपको मिडिल टर्म देखना है. क्या वो 2ab के फॉर्म में है? हमारा a है 5m और b है हमारा 3. सो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन मेरा 30m बन रहा है? 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30. यस, इट इज़ बिकम. सो यहाँ पर हमें a इज इक्वल टू दिख रहा है 5m, b इज इक्वल टू दिख रहा है 3. सो यू कैन राइट इट 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर. ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी. a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, understand. So this way you can solve the question number 1. Okay, in question number 1, if the question, okay, let's see 4th question also. अगर हम 4th question लेते हैं तो 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर. ओके, सो व्हाट वी कैन डू हियर, 49 को हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर प्लस 6z का होल स्क्वायर. ओके, नाउ क्या ये 2 इंटू 7y इंटू 6z है? तो 7 6 ज़ा 42 एंड 42 2 ज़ा 84. ओके, सो यस, सो हियर हमें दिख रहा है a इज इक्वल टू है 7y
b is equal to a 6z. So simply our answer is 7y plus 6z whole square, because बीच में प्लस का साइन है. Okay, understand? So this way you can find the questions, find the factorization. Okay, understand? Now for fifth question is easy. So fifth you will do by yourself. Now what about sixth question? If sixth question की बात करें तो 121. यहाँ पर अगर आप स्क्वायर याद नहीं करे हैं आपने तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है. ओके, सो यू हैव टू लर्न स्क्वायर. So this is become 11b whole square, because 121 is a square of 11, 16 is a square of 4. Now here हमें चाहिए 2 into 11b into 4c. So 11 2s are 22 and 22 4s are 88. So yes, it become same. So हमारा a is equal to है 11b and b is equal to है 4c. So we can write 11b minus 4c whole square. Okay, understand? Same here. आपको इसमें क्या करना है, l प्लस m का होल स्क्वायर दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 6. अब यहाँ पर आपको होल स्क्वायर दिया है. दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी. व्हाट इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी? अगर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करूँ तो वो है हमारी ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हियर a इज इक्वल टू l एंड b इज इक्वल टू m है. ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm. अब ये l स्क्वायर और m स्क्वायर तो अलग अलग टर्म्स हैं, बट हमें पता है ये भी lm वाली टर्म है और ये भी lm की है, तो हम इसे पास पास लिख देंगे. प्लस 2lm माइनस 4lm. ओके, सो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm. अब नाउ ये किस फॉर्म में आ गया हमारा? सी हियर, l a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, सो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी आ गई. ओके, सो हम इसको यहाँ पर l a इज इक्वल टू l है, b इज इक्वल टू m है, और ये हमारी आइडेंटिटी हो गई l माइनस m का होल स्क्वायर. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7th. ओके, अंडरस्टैंड? सेम क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 को आप इस टाइप से लिख सकते हो, a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, सो a इज इक्वल टू a स्क्वायर है इस क्वेश्चन में, b इज इक्वल टू b स्क्वायर है. ओके, आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड? फैक्टराइज. यहाँ पर भी हमें आइडेंटिटी यूज़ करना है, फैक्टराइज करना है. सी, हमें ये नंबर किस फॉर्म में दिख रहा है? 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर. यहाँ बीच में माइनस का साइन है, सो यू हैव टू राइट फर्स्ट आप क्या कर लेना, 2p का स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर. ये आपको थर्ड आइडेंटिटी मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है, जो हमारा होता है a प्लस बी a माइनस b. यहाँ पर a इज इक्वल टू दिख रहा है 2p, b इज इक्वल टू दिख रहा है 3q. सो आपका आंसर हो जाएगा 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q. दैट्स इट. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आपको इस टाइप से सॉल्व कर लेना है. ओके, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आर सेम हियर. जस्ट मिनट. फोर्थ वाले में आप क्या करेंगे? सी, अगर हम फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 16x टू द पावर 5 माइनस 144x क्यूब. सो बच्चों, इसमें आपको स्क्वायर तो नहीं दिख रहा, पावर्स जो हैं x की, वेरिएबल्स की पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्यों ना आप x क्यूब बाहर निकाल लें. अब अंदर क्या बचा? 16x स्क्वायर,
3 बाहर निकल गए, 5 में से 3 माइनस हुए, सब्सट्रैक्ट हुए, तो हमारे पास कितने बचे? ओनली 2। ओके, सो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसे आप लिख सकते हैं 4x² माइनस 12²। नाउ यू कैन सॉल्व इट इजीली। ओके, अंडरस्टैंड। और भी एक काम कर सकते हैं आप, इसमें x² के अलावा आप इसमें से 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, अगर आप इसमें से चाहें तो 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तब आपकी टर्म हो जाएगी 4x³ नहीं, मत निकालिए। 4 अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर 4 एंड ओके, आप 4 कॉमन निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर बच जाएगा। ओके, सो 4x³ अगर निकालते हैं, 16 में से 4 जाएंगे, 4 आप निकाल लेंगे तो आपका बचेगा 4x² माइनस 144 में से निकालेंगे तो 36 बचेगा। अब ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इस फॉर्म से भी आप कर सकते हैं और इस वाले फॉर्म से भी कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5th। l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्वेश्चन को आपको करना क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी, सो फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट वी कैन डू हियर, हम पहले सपोज कर लेंगे l प्लस m को हम ले लेंगे p और l माइनस m को ले लेंगे q। सो इसके हिसाब से ये हो जाएगा p² माइनस q²। We know that our third identity a² minus b², if any number is in the form a² minus b², so we can write it a plus b comma a minus b। so हम यहाँ पर लिख देंगे p plus q, p minus q। okay, so here what is p? अगर हम p की बात करें तो यहाँ p क्या है? अगर हम देखें p plus q into p minus q, so p is our l plus m and q is our l minus m। यहाँ पर भी वैसे ही होगा l plus m minus l plus m, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर दोनों m एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ दोनों l आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा l plus l, that is 2l into 2m। so 2 into 2 4l m is our answer। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5th ऑल्सो। ओके, अब 6 में क्या होगा? 6 में भी आप इसे लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, और इस वजह से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। 7th वाले में आपको पहले फर्स्ट सेकेंड वाली आइडेंटिटी लगा देनी है x² माइनस 2xy प्लस y² में। ओके, सो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस z²। अब नाउ x माइनस वाई को आप ले लेंगे p, तो ये हो जाएगा p² माइनस z² मीन्स p² माइनस q²। ओके, सो ये हो जाएगा p प्लस z एंड p माइनस z। p क्या है आपका? x माइनस वाई प्लस z और x माइनस वाई माइनस z इज योर आंसर। ओके, अंडरस्टैंड, इज योर फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट, सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th आप देखते हैं अगर, तो क्वेश्चन नंबर 7th में हम क्या कर रहे हैं? इन क्वेश्चन नंबर 7th व्हाट वी कैन डू हियर, 25a² माइनस 4b²। अब यहाँ पर जो 28bc है वो b और c की टर्म है, सो 25a² एज इट इज़ रहने देंगे आप पहले। ओके, आपको यहाँ दिख रहा है 4b² 428bc और 49c²। सो अगर आप इन तीन टर्म्स में से अगर माइनस साइन कॉमन निकालें तो 4b² को आप लिख सकते हैं अंदर 2b का होल स्क्वायर, माइनस साइन बाहर आ गया तो ये प्लस में हो गया, माइनस बिकॉज 28 प्लस पॉजिटिव साइन के साथ है, उसका माइनस बाहर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 2 इंटू, पहले हम मिडिल टर्म बाद में लिखेंगे,
49 को आप लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर। ओके, नाउ 2 इंटू 2b इंटू 7c। सो ये क्या 28 होता है, 7 टू ज़ा 14 एंड 14 टू ज़ा 28। यस, तो आप इसे लिख सकते हैं 25a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। सो ये बिकम हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस आपका है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब इसे आप ले सकते हैं पूरे को p का स्क्वायर, और ये आप लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 5a प्लस p और 5a माइनस p। a क्या है, p क्या है आपका 2b माइनस 7c। सो वहाँ पर जहाँ जहाँ p है वहाँ पर आप लिख देंगे 2b माइनस 7c। ओके, एंड दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7th ऑल्सो। सेकेंड का 7th आपका इस टाइप से सॉल्व करना है। ओके, अंडरस्टैंड। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द ऑल द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कॉमन निकालना है। आपको यहाँ दिख रहा है, अगर कोई कॉमन से जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ओनली कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन निकलेगा, उसके अलावा उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा, अगर आप एक्स कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा ax प्लस बी। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ओके, अंडरस्टैंड। सेकेंड वाले में अगर आप दोनों में से 7 बाहर निकालते हैं, दोनों में से अगर 7 बाहर निकालते हैं, 7 को कॉमन निकालते हैं, तो अंदर बचेगा p स्क्वायर माइन प्लस 3q स्क्वायर। बस दैट्स इट, इसके अलावा इसको और सॉल्व नहीं कर सकते आप। ओके, सो आपको थर्ड क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या कॉमन निकल सकता है मैक्सिममली। आप थर्ड वाले में देखिए 2 आपको कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। तो अगर आप थर्ड वाले में 2x कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट x कॉमन निकल गया, तो हमारा बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बस दैट्स योर आंसर। ओके, x 2x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड। सेम हियर आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में खाली कॉमन निकाल कर करना है। ओके, वैसे ही आप अगर 7th वाला 6th वाला देखेंगे तो y प्लस z दोनों में कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा y प्लस 9। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड यू ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड बाय योर सेल्फ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ योर होमवर्क, एंड फर्स्ट एंड सेकंड में से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट इन योर नोटबुक। ओके, एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आइडेंटिटी सी लगेंगी। आपके पास आइडेंटिटी है, जैसे आपको दिया हुआ a स्क्वायर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। सो आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, सो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म हो गया, मीन्स ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये इसे फिर और आप खोल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो वो एज इट इज़ रहेगा। आप इसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। Okay, so try to complete this exercise. This is very easy exercise. You have to complete question number 5 तक आपको complete कर लेना है। Okay, so complete this exercise 14.2 by yourself, and if you have any doubt tell me on WhatsApp. Okay, understand? So complete this exercise in your notebook. Okay, have a good day.